be sitting upstairs. Ladies and gentlemen, our revered members of the Trust, honorable guests of the day, esteemed faculty and our enthusiastic first-year students. Welcome to this exciting college orientation event. I am Sana and alongside me is the wonderful Ananya. We are thrilled to be your host for this special occasion as we embark on this memorable journey together. College life is a unique and transformative experience, full of opportunities for growth, learning and of course, fun. It's a time to make lifelong friends, discover new passions and shape your future. As you step into this vibrant community, remember to embrace every moment and make the most of your time here. I would like to invite our esteemed dignitaries to join us on the stage for the lamp lighting ceremony. I request Shri Jagdish Mittal ji, Vice Chairman, Maharaja Agrasen Technical Education Society, to present a sapling and memento to Professor Rama, Principal Hansraj College, University of Delhi. I also request Professor Rajni Malhotra Dhingra, Director Mains, and Professor Neelam Sharma, Director MAID, to present a shawl as a token of our gratitude to Professor Rama, our Chief Guest of the day.
for gracing the occasion. I request Shri Gyanendra Srivastav ji, CEO MATES, to felicitate Shri Yashpal Sharma ji, our revered judge of Hindi Divas, by presenting a sapling and memento. Memento to Shri Anil Agravanshi, Judge of Hindi Divas. I request Professor S.K. Garg, Advisor MATES, to present a sapling and memento to Shri Pratap Fauzdar, Judge of Hindi Divas. I request Dr. Marwa, Director MABS, to welcome Shri Jagdish Mittal ji, Vice Chairman MATES, by presenting a sapling and a memento. I request Dr. Gaurav Agarwal, Head Department of Economics, to welcome Shri Rajneesh Kumar Gupta ji, Secretary MATES, by presenting a sapling and memento. I request Professor Umesh Pathak, Head Department of Journalism and Mass Communication, to welcome Shri Gyanendra Srivastav ji, CEO MATES, with a sapling and a memento. Thank you all to the esteemed guests for sharing their valuable time and gracing us today with this occasion. Deliver the welcome speech. Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra is a beacon of wisdom and a driving force behind our institution. Please join me in giving her a warm welcome as she addresses her and sets the tone for this event. नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आज के मुख्य मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर रमा का, जो कि प्राध्यापक हैं हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं स्वागत करती हूँ अनिल अग्रवंशी जी का, प्रताप फौजदार जी का, यशपाल जी का, और अपने कॉलेज के डिग्नेटरीज
उपाध्यक्ष जगदीश मित्तल जी, ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी, CEO ऑफ मेथ्स, प्रोफेसर डॉक्टर SK गर्ग, प्रोफेसर डॉक्टर नीलम शर्मा, रजनीश गुप्ता सर एंड प्रोफेसर डॉक्टर मारवा जो कि डायरेक्टर हैं महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल। शुरुआत कुछ पंक्तियों से और कोशिश रहेगी कि आज हिंदी दिवस है तो ज़्यादा हिंदी का हम प्रयोग करें। आरंभ एक नए जीवन का, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे तो नहीं ओरिएंटेशन है, सो आरंभ एक नए जीवन का, बुनियाद जिसकी समय निष्ठा एवं समर्पण है। जो लोग हिंदी समझते हैं, समय निष्ठा इज़ द पंक्चुअलिटी एंड समर्पण इज़ डेडिकेशन। परिश्रम जब आपका प्रतिफलित होगा, परिश्रम जब आपका प्रतिफलित होगा, गर्वित तब आपका परिवार एवं संस्थान होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इस संस्थान में स्वागत है और आई कंग्रेचुलेट यू कि आपने अपनी इस कॉलेज को अपनी प्रमुख प्रेफरेंस रखा। अब जब मैं कह रही हूँ कि आई कंग्रेचुलेट यू टू सेलेक्ट दिस इंस्टीट्यूशन, सो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। सो व्हाई दिस इंस्टीट्यूट इज बेस्ट? दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन accredited A++ by NAAC. और पूरी दिल्ली में कुछ ही ऐसे संस्थान हैं जो कि NAAC A++ accredited हैं। तो आपने इस संस्थान को चुना, मुझे इस बात का फक्र है और गर्व है कि मैं इस संस्थान में निदेशक के तौर पे काम कर रही हूँ। और क्या खास है इस इंस्टीट्यूट में? सो वी आर हैविंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव कमिटेड फैकल्टी, supportive environment that is required for the overall development of the students, plethora of activities। जिन्होंने 1 तारीख को इस कॉलेज को ज्वाइन किया था, कुछ लॉ स्टूडेंट्स ने जो 1 तारीख से इस कॉलेज में आ रहे हैं, वो जानते हैं कि इन 15 दिनों में हमने 2 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। नेशनल मॉक कंपटीशन जिसमें 38 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था, और दूसरा कार्यक्रम ये हिंदी दिवस है जिसमें भी ये इंटर कॉलेज प्रतिस्पर्धा है और इसमें भी दिल्ली से और बाकी और कॉलेजेस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट। वी नो कि किताबी ज्ञान पूरा नहीं है, इसके साथ साथ कुछ और कार्यक्रम करने पड़ेंगे, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी ताकि वो उनका कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल्स जो है वो हम सुधार सकें। और सबसे अंत में, जिसके लिए सब आप सुनना चाहते हैं कि येस वी आर हैविंग गुड प्लेसमेंट्स ऑल्सो एंड मोर ओवर बहुत ही जल्द हम लैंग्वेज विभाग भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम हम संस्कृत भाषा का पे एक कोर्स करेंगे और फ्रेंच या जर्मन दोनों में से एक भाषा पे हम जल्द ही एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। बिकॉज आर फोकस इज, जबकि आप कॉलेज से जाएंगे 5 साल बाद या 3 साल बाद, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा चेंज आपके माता पिता को और ये पूरी सोसाइटी को देखने को मिले। And as I am repeating it that in MEMS we are determined in overall development of the student, and for this, as I told you, that we are organizing and we will be organizing various curricular, co-curricular and cultural activities for our student, because the focus is to sharpen your skill. As in NEP also, now we are focusing on skill-based education. So our focus is also that your skills should be improved, so that once you will go out from the institute, you should be market ready. और हमारे संस्थान में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं सिखाया जाता, इसके साथ साथ आध्यात्मिकता पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। हमारे पास मेडिटेशन सेंटर है, जो बच्चे लोग और जो फैकल्टी मेडिटेशन करना चाहते हैं कुछ समय निकाल कर वो मेडिटेशन सेंटर में जाकर मेडिटेशन भी कर सकती हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो हमने गीता क्लासेस शुरू करी हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि आज के विद्यार्थी भी गीता के ज्ञान को अर्जित करने में उतना ही उत्साह
उत्साह दिखा रहे हैं, मैं कहूँगी पहले से ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हैं। वॉलंटरी बेसिस पे अपने आप से कुछ विद्यार्थी, कुछ चुनिंदा विद्यार्थी गीता क्लास अटेंड करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये हमें बहुत ही खुशी देती है कि हम किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको असली ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान भी दे रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम आपको क्या देंगे और हम प्रतिबद्धित हैं आपके विकास के लिए, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस एज ए कॉलेज, एज ए डायरेक्टर आई एम हैविंग फ्रॉम यू, और वो एक्सपेक्टेशंस हैं, वी डिमांड दैट यू विल बिहेव प्रोफेशनली and will not indulge yourself in the activities that can compel us to take strict action against you. Second is, wear appropriate dress suited for professional courses you opted for. आपने लॉ प्रोफेशन चुना है, एक ड्रेस है, आप कोर्ट में वही ड्रेस डाल के जाते हैं। बीजेएमसी, बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड है कि आप उसी तरह का ड्रेस यहाँ पे भी पहन के आएँ। बी पंक्चुअल एंड रेगुलर इन अटेंडिंग योर क्लासेस। As our students, that you all will be our brand ambassador for future, so we will not be able to compromise in doing any activity or to take any action that will enhance your future perspective. आज हिंदी दिवस भी है और ये दिन हमने विशेष तौर पे चुना है कि एक दिन में हम 2 प्रोग्राम कर रहे हैं। ओरिएंटेशन डे भी है आपका और साथ ही साथ हम हिंदी दिवस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हिंदी दिवस को 14 सितंबर को ही हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या कारण है इसमें? एनीबडी हु वांट टू आंसर? किसी को मालूम है कि 14 सितंबर को ही हिंदी डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? पाठक सर। हिंदी डे को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को हिंदी में लिखने का निर्णय लिया गया था। इस दिन को हम 14 सितंबर को, उसी दिन से हम इसको हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि कोशिश करिए हिंदी को अपने भाषा, रोज़मर्रा की भाषा, वैसे तो हम हिंदी बोलते हैं जब अपने फ्रेंड से बात करते हैं, लेकिन जब पब्लिक फोरम पे बोलने की बात आती है तो कई बार हिंदी बोलने में हमें हिचक होती है। तो हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और आज के दिन प्रण लें कि आज कम से कम अब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। Thank you, ma'am, for your inspiring words. Professor S.K. Garg, advisor mates, joined in August 2019 after retirement from Deen Dayal Upadhyay College of Delhi University, where he served as the principal for over 20 years. In his 42 years of rich career, he has been a member of various committees of Delhi University, University Grant Commission and Ministry of Human Resource Development, including the National Knowledge Commission's working group which designed the choice-based credit system in 2014. Sir has 16 research publications and many awards to his credit, including the Ambassador for Peace Award for the International Federation for World Peace. I request Professor Garg to address the gathering. समारोह की मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमा, प्रिंसिपल हंसराज कॉलेज, प्राचार्य हंसराज कॉलेज ज़्यादा उपयुक्त होगा। श्री अनिल अग्रवंशी जी, श्री प्रताप फौजदार जी, श्री यशपाल शर्मा जी, श्री जगदीश मित्तल जी, श्री रजनीश गुप्ता जी, श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी और हमारी संस्था के 3 स्तंभ, डायरेक्टर मेट डॉक्टर नीलम शर्मा, डायरेक्टर मेम्स डॉक्टर रजनी मल्होत्रा ढींगरा एंड डायरेक्टर MAIB प्रोफेसर संजीव मारवा, फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को है। जैसा कि अभी डॉक्टर रजनी ने बताया
मगर हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, यानी हिंदी दिवस के जो कार्यक्रम हैं ये हम अगले 2 सप्ताह तक मना सकते हैं, ऐसी फ्रीडम हमें दी गई है। अभी पिछले 3 वर्ष पूर्व जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये निर्णय लिया गया कि मातृभाषा में ही पढ़ाई कराई जाए कम से कम 8वीं कक्षा तक, तो मेरा अपना मन अतीत में खो गया और मैं आज अपने अतीत से 3 जो मेरे अनुभव हैं वो आपसे साझा करना चाहूंगा। मेरा पहला अनुभव हुआ लगभग 13-14 वर्ष की आयु में। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हमारे ज़माने में उस वक्त लगभग सभी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि दिल्ली में पब्लिक स्कूल मुश्किल से 7 या 8 रहे होंगे और सरकारी स्कूल से ही सारी पोजीशंस आती थी और जितने टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें से अधिकतर या विभिन्न संस्थाओं में जो लोग हैं वो अधिकतर सरकारी स्कूलों से ही निकले हुए हैं। हमारा घर तिमारपुर में था और तिमारपुर में एक स्कूल है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल। उस टाइम हायर सेकेंडरी होता था, अब सीनियर सेकेंडरी हो गया है। वहाँ से मैंने 8वीं कक्षा पास की। दादाजी की इच्छा थी कि पोता डॉक्टर बने। स्कूल में बायोलॉजी थी नहीं, तो ऐसे किसी स्कूल की तलाश हुई जहाँ बायोलॉजी पढ़ाने की व्यवस्था हो। तो हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर राजनिवास मार्ग जिसको अब कहते हैं, उसे लुडलो कैसल कहते थे, वहाँ पर एक स्कूल था, मॉडल स्कूल लुडलो कैसल। उस वक्त दिल्ली में सिर्फ एक ही मॉडल स्कूल था। तो मेरे नंबर 8वीं में उस टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, नंबर ठीक ठाक थे, 78% उस टाइम काफ़ी अच्छे माने जाते थे। तो मेरा एडमिशन तो हुआ मगर 1 महीना लेट हुआ, यानी स्कूल का सेशन शुरू हुआ 6 जुलाई से और मेरा एडमिशन वहाँ पर हो पाया 6 अगस्त से। तो जो मेरा पुराना स्कूल था वहाँ तब तक हमारे टाइम में 8वीं के बाद साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के सेक्शंस का विभाजन होता था 9th में। तो तिमारपुर स्कूल में जहाँ अभी तक ये विभाजन भी नहीं हुआ था, मॉडल स्कूल में ये विभाजन अप्रैल में हो चुका था और अप्रैल, 1 हफ्ता मई का और लगभग 1 महीना जुलाई और पहला हफ्ता अगस्त का, लगभग 2-2.5 महीने की पढ़ाई वहाँ हो चुकी थी। अब मेरी विडंबना देखिए, मेरा एडमिशन हुआ लगभग 9:30 बजे के करीब और प्रिंसिपल साहब ने मुझे पीएन के साथ भेज दिया कि इसे 9th B में ले जाओ। जब मैं 9th B क्लास में पहुंचा तो बेल बजी और सारे स्टूडेंट्स निकल के लाइन में बायोलॉजी की क्लास के लिए, बायोलॉजी लैब में जाने के लिए चल पड़े। मैं भी लाइन में चल गया। हमारे जो बायोलॉजी के टीचर थे काफ़ी होनहार थे और वो लैब में ही थ्योरी की क्लास लिया करते। एक स्पेशल प्रिविलेज था उनको, साइंस के टीचर्स को, खासकर बायोलॉजी के टीचर्स को, क्योंकि बायोलॉजी लैब में बैठने की व्यवस्था बड़ी अच्छी होती है, स्टूल होते हैं, टेबल साफ सुथरी होती हैं। केमिस्ट्री में तो बहुत गंद होता है। अब वो वहाँ पर एनसीईआरटी की एक बुक होती थी पी माहेश्वरी की, जिसके 7 सेक्शन थे और सेक्शन पहला जो था उसमें पहले 3 चैप्टर बड़े जनरल से थे, चौथा चैप्टर सेल था और 5वां चैप्टर सेल डिवीज़न था। तो उस दिन उन्होंने 5वां चैप्टर शुरू किया, सेल डिवीज़न। मैं हिंदी मीडियम से था। अब वो बोले सेल डिवीज़न, मेरे मस्तिष्क में तो सेल, मैंने टॉर्च के सेल के अलावा कोई सेल देखा नहीं था। और हमारे समय में जो विज्ञान पढ़ाया जाता था 6ठी, 7वीं, 8वीं में, वो सामान्य विज्ञान होता था जिसमें सेल या कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस नाम से कोई सब्जेक्ट नहीं था। किसान के शत्रु, मित्र, कीड़े, खेती के विभिन्न उपकरण, इस टाइप की सामान्य विज्ञान हमें पढ़ाई जाती थी। तो जब वो सेल डिवीज़न बोले तो
मुझे लगे कि सेल, टॉर्च का सेल, फिर उसका डिवीज़न, ये कैसे होगा, क्यों होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे तैसे आधा घंटा बीता, उसके बाद रिसेस हो गई। 5वां पीरियड शुरू हुआ। पीरियड था मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है शुरू से। तो उस साल मॉडर्न एल्जेब्रा शुरू हुआ था। उससे पहले एल्जेब्रा होता था, मॉडर्न एल्जेब्रा, जिसमें सेट्स और यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये सब होता था। हमने तो सेट के नाम पे टी सेट के अलावा कुछ सुना ही नहीं था। अब उन्होंने एल्जेब्रा में जब वो सेट और सेट नोटेशन, कम्यूटेशन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये सब पढ़ाना शुरू किया तो सब कुछ दिमाग के ऊपर से निकलता चला गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। वो पीरियड भी बीता। उससे अगला पीरियड फिजिक्स का था। जो फिजिक्स के टीचर थे वो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, ए बॉडी हैविंग मास of 2 pounds is moving with a velocity of so and so, so and so. मास, हमें तो मास मीन्स मीट, यही सुना था। मास का और कोई अर्थ हमें मालूम नहीं था। ए बॉडी मीन्स डेड बॉडी, उसके अलावा कोई बॉडी नहीं सुनी थी। तो कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ सिर के ऊपर से गुजर गया। और नेक्स्ट पीरियड उससे था केमिस्ट्री का, जिसमें वो केमिकल इक्वेशंस कैसे बैलेंस करते हैं वो सिखा रहे थे। मुझे सिंबल्स ही नहीं पता थे, तो फार्मूले और केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना वो तो बहुत दूर की बात थी। 6 अगस्त 1967 की ये मेरी व्यथा है। एक तो ये सारी टर्म्स समझ नहीं आई, एडमिशन लेट हुआ था। दूसरे मीडियम इंग्लिश हो गया था, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। 16 अगस्त से पहला टर्मिनल टेस्ट हुआ और सिवाय हिंदी और इंग्लिश के बाकी 3 सब्जेक्ट्स में फेल। जैसे तैसे समय बीतता गया, हायर सेकेंडरी की, फिर बीएससी ऑनर्स किया। पहले प्री मेडिकल किया, प्री मेडिकल बाद मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला। आई डिसाइडेड टू वेस्ट ए ईयर एंड देन ज्वाइन केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रेश। तो जो 1 साल का ब्रेक मिला, ओवरलैप मिला प्री मेडिकल के बाद फर्स्ट ईयर, उसमें आई रिकवर्ड एंड देन आई ऑलवेज हैड ए पोजिशन इन द यूनिवर्सिटी टिल माई MSc क्लासेस। तो ये मेरी व्यथा थी कि अगर हिंदी मीडियम रहता तो शायद मुझे इतनी कठिनाई नहीं होती। अब मेरी दूसरी व्यथा देखिए। 10 साल बाद 1977 में मैंने अध्यापन शुरू किया। राजधानी कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मेरी अपॉइंटमेंट हुई और मैंने केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू की। मेरी छोटी बहन जो मुझसे 10 साल छोटी थी, वो तब तक 10th में आ गई थी और उसकी जो किताबें थी वो हिंदी मीडियम में थी। एक दिन वो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मेरे पास आ गई। चैप्टर को मैंने देखा और मैं देख के हैरान रह गया। अपचयन, ऑक्सीकरण, ये टर्म्स उसमें थी। अब मुझे नहीं समझ में आया। ऑक्सीकरण से मुझे इतना तो समझ में आ गया कि शायद ये ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीकरण क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तो अपचयन बाय एनालॉजी रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन गो टुगेदर। तो ये दूसरी विडंबना थी कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, जिसकी वजह से कि छात्रों को 2 टर्म समझनी पड़ती हैं। इंग्लिश में भी टर्म समझो और हिंदी में भी टर्म समझो। तो क्या ये संभव नहीं था कि हम केवल माध्यम की ट्रांसलेशन करते, हम माध्यम हिंदी का रखते और जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो जिस लैंग्वेज में उनका ओरिजिन हुआ है उन्हीं लैंग्वेजेस में उन टेक्निकल टर्म्स को एक्सेप्ट कर लें। मेरा नाम अगर सुरेश है तो वो सुरेश ही रहेगा, जिस मर्जी लैंग्वेज में लिख लीजिए आप। तीसरी व्यथा हुई और 10 साल के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर बना। लगभग 100-120 के करीब मेंबर्स उस टाइम वहाँ पर होते थे और जो डोमिनेशन था वहाँ पर लिबरल लेफ्ट के लोगों का डोमिनेशन था। सब अंग्रेजी में बोलते थे। वाइस चांसलर थे प्रोफेसर मुनीस रजा, वो भी अंग्रेजी में बोलते थे। तो हम जैसे लोगों को जिनको वर्किंग नॉलेज इंग्लिश का था, जो केमिस्ट्री तो अंग्रेजी में पढ़ा लेते थे
लेकिन अगर जनरल टॉपिक्स पर भाषण देना हो तो अंग्रेजी में देने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो हम लोग बैठे हुए सोचते रहते थे कि ये हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते, जब तक हम ट्रांसलेशन करते कोई दूसरा आदमी उस आर्गुमेंट को पहले ही दे चुका होता था। ये तीसरी बार विडंबना थी। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि NEP 2020 ने जो ये डिसीजन लिया कि 8वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी, केवल हिंदी में नहीं, जिसकी मातृभाषा तमिल है उसको तमिल में पढ़ाया जाएगा, जिसकी बंगला है उसे बंगला में पढ़ाया जाएगा, और जिसकी हिंदी है उसे हिंदी में पढ़ाया जाएगा। तो जो क्रिएटिविटी है विद्यार्थी की, वो क्रिएटिविटी उभर के आएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे बहुत खुशी है कि आज हम एकत्रित हुए हैं हिंदी दिवस मनाने के लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समय के साथ साथ हिंदी में कार्य करने की हमारी क्षमता बढ़ेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया के और लोग हिंदी सीखेंगे और हिंदी में बात करेंगे और हिंदी में अपने आर्टिकल्स लिखेंगे। धन्यवाद। With us, we request you to bless the students with your kind words. Repeated. आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रमम, आदरणीय प्रोफेसर SK गर्ग, जगदीश मित्तल जी, अनिल अग्निवर्षी जी, प्रताप फौजदार जी, प्रोफेसर नीलम शर्मा, डायरेक्टर मेट्स, प्रोफेसर रजनी मल्होत्रा दींगड़ा, डायरेक्टर मेम्स, सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से वेलकम करता हूँ। आप जो नए स्टूडेंट आए हैं, नाउ यू आर पार्ट ऑफ महाराजा अग्रसेन फ्रैटर्निटी, नाउ यू आर पार्ट ऑफ महाराजा अग्रसेन फैमिली, और आप सबका तहे दिल से स्वागत है। एक्चुअली जो संस्था के संस्थापक हैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, उनका ये एक प्रथा रही है कि वो खुद जो नए स्टूडेंट आते हैं उनका खुद स्वागत करते हैं, मगर आज वो आउट ऑफ स्टेशन है और उनकी गैर मौजूदगी में हम सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, दोनों डायरेक्टर्स हैं, जगदीश मित्तल जी हैं, और हम सब आपका स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ साथ आपको मुबारकबाद भी देते हैं। यू हैव कम थ्रू ए वेरी रिगरस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन to get admission and to get admission in one of the best institution. This is a matter of achievement, and for that each one of you deserve to be congratulated. You are the best and the brightest. और महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जिसमें आप दाखिला ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो द बेस्ट। जैसा मैडम डायरेक्टर ने कहा कि इनको नेशनल एकेडमिक एक्रेडिटेशन काउंसिल से A++ जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है उसका नेशनल एक्रेडिटेशन मिला है। और नेशनल एक्रेडिटेशन के अलावा जो नेशनल रैंकिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, NIR ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें भी इनकी नेशनल रैंकिंग है। महाराजा अग्रसेन फ्रेटर्निटी में 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। इन तीनों को जो है नेशनल एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। और इस वर्ष जो हमारा 25वां वर्ष है, सिल्वर जुबली है, उसमें प्रोफेसर तोमर का एक नया इंस्टीट्यूट चालू हुआ है, महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल। और so you belong to a distinguished family, you belong to institutions which are of highest which have excellence and which are dedicated to high quality of education. एक मेरी आप लोगों को सलाह है कि पढ़ाई लिखाई में तो आप आगे हैं ही हैं, खेल कूद में और जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जितनी एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में भी खुल के हिस्सा लें। यहाँ पे सारी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिम्नेजियम नीचे है, जो आपका खाली समय है जिम्नेजियम में लगाएं।
जो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, बिलियर्ड्स और स्नूकर है, वो सब खेलें आप। और टाइम हो तो योगा और प्राणायाम का भी यहाँ पे वो है। अगर गोल्फ खेलने में आपकी दिलचस्पी है तो कम टू मी, आई एम ए गोल्फर, आई हैव बीन प्लेइंग गोल्फ फॉर 30 years एंड आई एम 75 years old, बट आई थिंक आई एम फिट इनफ ओनली बिकॉज आई हैव बीन प्लेइंग गोल्फ। तो अगर गोल्फ में दिलचस्पी है तो यू आर वेलकम। ए वर्ड ऑफ कॉशन ऑल्सो, आज अखबार में मैंने पढ़ा कि कोटा में जो कोचिंग सेंटर का सारे हिंदुस्तान में सेंटर है, वहाँ एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। ये सुसाइड के इंसिडेंट्स जो हैं अभी कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि कभी कोई स्ट्रेस हो, हम सब स्टूडेंट रहे हैं, हम सब जो है कभी नंबर कम आए, कभी नंबर ज़्यादा आए, कभी किसी से झगड़ा हो गया, कभी मारपीट हो गई, तो स्ट्रेस की सिचुएशंस होती हैं। तो अगर कोई स्ट्रेस हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, share it with your teacher, share it with your family, share with all of us. We are all open and available. मगर ये इस तरह का जो है न्यूज़ जब आता है कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर ली, दैट इज़ हार्ट ब्रेकिंग। दूसरा जो है वो जो शेयर करना चाहता हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा कि जो अशोका यूनिवर्सिटी है उसके एक सीनियर प्रोफेसर ने कहा कि यूनिवर्सिटी में ड्रग मेनेस इज़ रैम्पेंट। Now this is a shame, this is a horrible shame. So be careful not to fall prey to anything to do with drug. और हमारे यहाँ तो इस संस्था में ये प्रथा है कि साल में 2 बार ब्लड डोनेशंस बच्चे करते हैं। ब्लड डोनेशन वही बच्चा कर सकता है जो हेल्दी है, जो डिजीज़ और सिकनेस से फ्री है। तो ये वैसे भी आपने स्वस्थ रहना है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना है तो स्वस्थ रहना है, और ब्लड डोनेशन आप तभी कर पाएंगे जबकि आप हर तरह से स्वस्थ हैं और सिकनेस और डिजीज़ से। ब्लड डोनेशन में जो है वो इट्स ए नोबल वर्क, इट्स ए नोबल सेंटिमेंट। आप ब्लड डोनेट करके किसी की जान बचाते हैं, और ब्लड डोनेट जब आप करते हैं तो आपको कार्ड मिलता है जिससे आपको भगवान न करे कभी ज़रूरत पड़े तो आपको प्रियोरिटी पे ब्लड डोनेशन आपको या आपकी फैमिली को अवेलेबल होता है। ब्लड डोनेशन की 4 कैटेगरीज होती हैं। कितने लोगों को मालूम है कि 4 कैटेगरी? रेज योर हैंड्स। माय गॉड, यू पीपल डोंट नो व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। यू आर ऑल्सो वेल एजुकेटेड, इंटेलिजेंट। मेरा ब्लड ग्रुप O+ है। मिसेज इंदिरा गांधी का ब्लड ग्रुप मुझको याद है O नेगेटिव था। 2 और दूसरे ब्लड ग्रुप्स होते हैं A और AB, जो आपको कार्ड मिलेगा उसमें आपका ब्लड ग्रुप भी मेंशन किया जाएगा। एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, मैं 15 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, 2 बार इस तरह के इंस्टेंसेस हुए हैं जेंडर सेंसिटिविटी के। यू आर ऑल इंटेलिजेंट, यू आर ऑल सेंसिबल पीपल, एंड यू शुड बी केयरफुल नॉट टू डू एनीथिंग, नॉट टू एक्ट इन एनी मैनर विच इज़ ग्रेसलेस, एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट जेंडर सेंसिटिविटी। ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, मगर ये बात आप ख्याल में रखें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ 3 कवि मौजूद हैं और वो आपको कविता सुनाएंगे, मगर लेट मी एंड बाई 1 पोएम। एक शायर के लफ्ज़ हैं ये, अभी उड़ान बाकी है। ये आपके रेफरेंस में है, आपने दाखिला ले लिया मगर अभी आपने कॉलेज की डिग्री हासिल करनी है, उसके बाद प्लेसमेंट होगी, उसके बाद सारी ज़िंदगी आपकी पड़ी हुई है। तो इस शायर ने कहा है, अभी उड़ान बाकी है, अभी उड़ान बाकी है, अभी नापी है हमने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी आसमान बाकी है, अभी उड़ान बाकी है। और यही मेरी दुआ है कि आपकी उड़ान कामयाब हो और आप आसमान की बुलंदियाँ छू सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you, Ma. Education, journalism and language. Ma'am has more than 36 books to her credit. Her articles are published in various admirable magazines, journals, books and newspapers. For over 3 decades, Ma'am is actively participating in radio and television shows and has presence in more than 500 national and international programs and events. Ma'am has more than 68 research papers published and presented in journals and conferences of repute.
won various prestigious awards, Nari Shakti Samman 2018, Rangrej, Best National Media Award 2018, Grace India Educational Charitable Trust, True Media Gaurav Samman 2017, True Media, Best Hindi Savior Award 2016, Rajasthan Academy, Hindi Journalist Award 2007, Everest Shiksha Samiti, to name a few. It is indeed our pleasure to have such a wonderful think tanker with us today. Please join me in welcoming Professor Rama as she shares his insights. आप सभी को सादर नमस्ते। आज के दिन का विशेष कार्यक्रम के सम्मानित मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी, अभी जिन्होंने अपने जीवन के व्यवहारिक उदाहरण आपके सामने रखे, ऐसे आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर गर्ग। अभी आप लोग जो कविताएं सुनेंगे और उस कविता के कार्यक्रम को जो आयोजित किया और जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए विवश किया, ऐसे अनिल अग्रवंशी जी और उनके साथ उपस्थित अन्य कवि जिसमें प्रताप फौजदार जी हैं, यशपाल जी हैं, इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और इस सभागार में बैठे हुए एक व्यक्ति को आज जो भारत में एक भाषा का उत्सव मन रहा है, उसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप सबको सादर नमन है। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आज आप विद्यार्थियों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हिंदी दिवस का कार्यक्रम, हिंदी दिवस के कार्यक्रम में मुझ जैसे वक्ताओं का बोलना, उसी में कवि गोष्ठी होना और उसी में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होना, ये सिद्ध करता है कि महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक समय पर एक काम नहीं करता, बल्कि एक साथ कई सारे काम करने में सक्षम है। एक साथ कई काम करने वाले इंस्टीट्यूट को नैक में A++ रैंकिंग मिली, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन A++ रैंकिंग के साथ इस इंस्टीट्यूट को यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि मैं बैठे बैठे सोच रही थी और मेरे मन में पंक्तियां आ रही थी कि तुम्हारे घर में सीढ़ियां बहुत हैं, तुम्हारे घर में सीढ़ियां बहुत हैं, तुम्हें छत तक जाना है, लेकिन मेरी नजर आसमां पर है, मेरी नजर आसमां पर है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। वो जो रास्ता बनाने की हम बात करते हैं, जो रास्ता खुद बनाना है, ये विद्यार्थी इन फैकल्टी मेंबर्स के साथ मिलकर रास्ता बनाएंगे। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, रास्ते में संघर्ष भी आएंगे, लेकिन मैं आते आते इस संस्थान में पढ़ रही थी कि ये देश तुम्हें बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ नहीं सब कुछ देता है, तुम भी तो कुछ देना सीखो। आज से आपने प्रवेश लेकर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट के परिवार को समृद्ध किया, आपका उसके लिए आभार और महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई। आपका परिवार समृद्ध हुआ इन विद्यार्थियों के आने से। लेकिन ये जो विद्यार्थी सामने बैठे हुए हैं, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो। आप सब आजाद भारत में न केवल आपने जन्म लिया, बल्कि आजाद भारत का जो स्वर्णिम काल चल रहा है, जिसमें भारत लगभग 75 वर्षों की आजादी को देख चुका है, उस आजादी के अच्छे बुरे अनेक अध्याय रहे होंगे, लेकिन अब जो समय चल रहा है वो सबसे अच्छा समय इसलिए चल रहा है कि इस समय आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आती है। 2020 कहते ही स्पीड का पता चलता है कि समय कम है, काम ज्यादा है। 2020 क्रिकेट मैच की तरह से स्पीड के अनुसार काम करना है। आपकी पीढ़ी वह पीढ़ी है जिसने भारत में अभी कुछ दिन पहले G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत को देखा, दिल्ली बदली लगी कि ये हमारा असली भारत है। आपकी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 को जाते हुए देखा। ये भारत की उपलब्धियां हैं, ये भारत का समय है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरफ प्रोफेसर गर्ग ने संकेत किया था
मुझे लगता है सम्मानित मंच के सभी सदस्य इस बात से पूरी तरह से वाकिफ होंगे। अभी भी कहा गया, कोटा का उदाहरण दिया गया, ना जाने इस देश के विद्यार्थी, इस देश की प्रतिभा, इस देश के युवा लोग केवल भाषा के कारण फांसी के फंदे पर ही नहीं झूलते, बल्कि अपने कई सपनों को खत्म कर देते हैं। व्यक्ति जब सपने देखता है वो अपनी भाषा में देखता है। व्यक्ति जब सबसे पहले माँ बोलता है वो माँ बोलता है। हम कभी मुसीबत में होते हैं, माँ को याद करते हैं, हाय माँ, हाय बाप। आज तक किसी ने नहीं बोला, जहां तक मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि मेरे मुंह से ये आवाज निकली। मैं अलग बात है कि जीवन में जो माँ का महत्व होता है वही महत्व मातृभाषा का होता है। और भारत जिसके अंदर अनेक भाषाएं हैं, जिस राष्ट्र की विडंबना रही है, किस राष्ट्र में हमारे कई राज्यों के नाम भाषा के नाम पर रख दिए गए हैं। और क्या ये इस राष्ट्र की विडंबना नहीं है आदरणीय श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी? क्या इस राष्ट्र की विडंबना नहीं है? आजादी के बाद 75 वर्षों तक इस राष्ट्र की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, जबकि महात्मा गांधी ने आजादी के समय कहा था जिस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा नहीं होती वह राष्ट्र गूंगा होता है। इस देश ने देखा, इसीलिए 75 वर्षों तक ये राष्ट्र गूंगा बना रहा। अब ये राष्ट्र गूंगा नहीं है। इसीलिए एनईपी जब आपकी आई, सबसे बड़ी जो उसमें अहमियत है वो मातृभाषा को दी गई है। मातृभाषा में आपको काम करने की पूरी सुविधा है। आप जिस समय आगे बढ़े, आपने उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, अपने मन से हीन भावना बिल्कुल निकाल दीजिए। अभी अभी जिस समय मैडम रजनी बोल रही थी तो कह रही थी कि मैनेजमेंट, ये जो इंस्टीट्यूट है इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट अच्छा है, होना चाहिए, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट को इसकी बधाई। लेकिन आज ये भारत बहुत वर्षों तक गुलामी कर चुका, इसने बहुत वर्षों तक नौकरी कर ली। इस समय भारत के युवा विद्यार्थी नौकरी करने में नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। इसीलिए राष्ट्र का शीर्ष नेतृत्व स्टार्टअप्स की बात कर रहा है। और मैं मैनेजमेंट के बिहाफ पर आप सब विद्यार्थियों से कह रही हूं, आपके मन में कोई अच्छा आइडिया है, पता नहीं युवा मन एक चलते हुए पंखे को देखकर कौन सा आइडिया ले ले। हो सकता है प्रताप फौजदार जी बैठे हुए हैं, चलते हुए एसी को देखकर कोई नई पंक्तियां जुगाड़ कर ले, लेकिन ये युवा विद्यार्थी जो है इनके मन में बहुत आइडियाज होते हैं। हम सबको मिलकर इन आइडियाज को एक उड़ान देनी है। आपके मन में कुछ नया करने का सपना हो, वो जो नया हो वो भारत के टुकड़े करने वाला नहीं होना चाहिए, वो भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला होना चाहिए। और अगर वो भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला होगा तो आपके उस आइडिया का, आपका मन में जो एक नई उमंग होगी, उसका ना केवल पूरा स्वागत किया जाएगा बल्कि आपको आगे ले जाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। भाषा, जो आज आप भाषा का उत्सव कर रहे हैं, जिसके लिए आज ही गृह मंत्री ने, इस राष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, आप इसको केवल एक भाषा मत कहिए। अक्सर कहा जाता है अनिल जी कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी सीखने के लिए राजी नहीं होते। जब जब हिंदी की बात आती है कुछ विरोध शुरू हो जाते हैं। और मैं इस मंच से कहना चाहूंगी, हिंदी के लिए काम जितना गैर हिंदी भाषियों ने किया है उतने से उससे अधिक नुकसान हिंदी वालों ने किया है। दक्षिण भारत में हिंदी के लिए बहुत काम होता है। हम सब अपनी अपनी मातृभाषाओं का पूरा सम्मान करें, हम अपने राज्य की भाषा का पूरा सम्मान करें, लेकिन उस समय क्या करें जब भारत को एक आवाज में बात करनी है, उस समय एक भाषा चाहिए। और वो एक भाषा सिद्ध हो चुका है कि वो हिंदी हो सकती है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन इस राष्ट्र का इतिहास रहा है, गांधी चाहते किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते थे, गांधी का वर्चस्व था। अगर गैर हिंदी होते हुए हिंदी में बात की, कुछ तो कारण होगा। जब जब इस देश के नेतृत्व की बात आई, वर्तमान नेतृत्व को हम देख रहे हैं, इससे ऐसे अच्छा समय क्या आएगा जब इस देश का शीर्ष नेतृत्व बाहर विदेश में जाते हैं तो अपनी भाषा हिंदी में बात करते हैं। इसीलिए पूरा विश्व आज भारत की बात सुन रहा है। और हमारा लक्ष्य क्या है? 2020 समय कम है, लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का। वो विकसित भारत कौन बनाएगा? वो विकसित भारत आपके सम्मानित मंच के जितने सदस्य हैं, ये सब विकसित भारत को बनाने में सहयोग देंगे। लेकिन विकसित भारत को संभालने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी सामने बैठी हुई है। आपने विकसित भारत देखना है, विकसित भारत का नेतृत्व आपने करना है। उसके लिए आप
अपने जीवन को एक दिशा दीजिए, भाषा के माध्यम से दिशा दीजिए, सोच के विचार अपनी दिशा दीजिए, अपने आइडियाज को लेकर अपनी दिशा दीजिए। हमें भाषा को लेकर आपस में लड़ना नहीं है। हमारी सभी बोलियां माँ और मौसी का संबंध है, और जितनी माँ प्यारी होती है उससे ज्यादा मौसी प्यारी होती है। हमारा किसी राज्य की किसी भाषा से कोई विरोध नहीं है, हमारा कहीं विदेशी भाषा से कोई विरोध नहीं है, मेरा किसी विदेशी भाषा से कोई विरोध नहीं है। मैं तो चाहती हूँ ईश्वर करे आप अनेक भाषाएं सीखें, आप विश्व के हर देश की हर भाषा सीखें, लेकिन विरोध वहां आता है जब एक विदेशी भाषा के कारण हमारी अपनी भाषा पीछे हो जाती है और विदेशी भाषा हमारे ड्राइंग रूम से लेकर किचन तक आ जाती है। वो विदेशी भाषा घर घर में कार पहुंचा देती है, लेकिन घर घर के संस्कार छीन लेती है। इन संस्कारों को लाने के लिए, भारत को भारत बनाने के लिए हमें अब अपनी भाषा का इस्तेमाल करना होगा। एक ही दिन क्यों, हिंदी का उत्सव आज क्यों? मैं अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों को आमंत्रित कर सकती हूँ, और मैं आपको इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं, अच्छी अंग्रेजी में बात करने वाले जब फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे होते हैं और बात करते करते एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटने की कोशिश करते हैं, दिल से दिल मिलने की बात आती है, मन की बात करने की बात आती है, तो वो अपनी भाषा में बात करने लग जाती है। ये है अपनी भाषा की ताकत। तो आज इस अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं मैनेजमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आदरणीय जगदीश मित्तल जी को विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस तरह से अच्छे काम करके अच्छे विद्यार्थियों को एक रास्ता दिखा रहा है, मुझे लगता है तब तक इस राष्ट्र का भविष्य सुखद है, इस राष्ट्र का भविष्य अवश्य ही स्वर्णिम रहेगा। आप सबको पुनः एक दिन की नहीं, हर दिन की बधाई, जीवन के हर पल पल की बधाई। ईश्वर करे आपकी भाषा समृद्ध हो, आपका जीवन समृद्ध हो, आपके विचार समृद्ध हो, आप अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने राष्ट्र के साथ आप जुड़ते चले जाएं और निरंतर कोशिश करते जाएं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो जीवन में अंगारों पर चलना, अंगारों पर नंगे पांव चलना सीख जाते हैं, वो जीवन में आगे बढ़ना सीख जाते हैं। अंगारे जीवन में आएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और अंत में मैं प्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर कीर्ति काली की पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी। वो कहती हैं, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, आओ हिंदी में बातें करें, आओ हिंदी में बतियाएं, आओ हिंदी को घर घर तक लेकर जाएं, हिंदी से इस भाषा को समृद्ध बनाएं। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर नमस्कार। Thank you so much, ma'am, for inspiring the students with such powerful words. We are honored to have Shri Jagdish Mittal ji, Vice Chairman of Maharaja Agrasen Technical Education Society, who will share his valuable insights and experiences with us. Shri Jagdish Mittal ji's vision and leadership have played a pivotal role in shaping the path of our institution. Let us warmly welcome Shri Jagdish Mittal ji to the stage as he imparts his wisdom and delivers the presidential address. महाराजा अग्रसेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जिन लोगों ने प्रवेश लिया है, आज ये उनका पहला दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम का है और आप सौभाग्यशाली हैं। आज के इस प्रथम दिवस पर जिन लोगों का मार्गदर्शन संबोधन आपको सुनने को मिला, वो निस्संदेह बहुत मूल्यवान है, जीवन में बहुत काम आने वाला है। आप केवल उसको शब्द नहीं समझिए, ये उनकी मन की भावनाएं हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय ही अपने आप में महान है और उसके अंदर हंसराज महाविद्यालय ये अपने आप में एक विशेष छाप लेकर के काम कर रहा है। केवल शिक्षा ही नहीं, विचार और व्यवहार कैसा हो,
वह अभी आपने रमा जी से सुना। आपको लगा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी अपने विद्यार्थियों से कैसी हैं और आपके लिए भी कैसी हो सकती हैं। मैं इस संस्थान में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने आज हमें कृतार्थ किया और एक अच्छे संबोधन के साथ विद्यार्थियों को दिशा दी। और उनके लिए हमने सोचा, हम ही चाहते हैं आपको, आज उनको मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, पर आपको चाहने वालों को तो काफिला निकला। दिल ने कहा चल शिकायत कर खुदा से, दिल ने कहा चल शिकायत कर खुदा से, पर वो भी आपका चाहने वाला निकला। आज ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी ने अपने संबोधन में बहुत सी उपयोगी बातें जो आपके जीवन में काम आएंगी, अवश्य उसमें से अपने लिए कुछ न कुछ आज से ही निश्चय कर लेना अच्छा रहेगा। और ऐसे ही गर्ग साहब ने भी कहा, रजनी ढींगड़ा मल्होत्रा उपस्थित हैं, में कुछ चले गए हैं। उन्होंने भी आपसे इस संस्थान के बारे में, संस्थान का क्या स्तर है, आप लोगों ने यहाँ प्रवेश लिया है, आपके मन में कुछ जिज्ञासा रही होगी, नहीं मुझे यहाँ लेना है। और लोगों को यहाँ नहीं मिल पाया, आपको मिला, आप सौभाग्यशाली हैं। A++ रैंक बहुत परिश्रम से संस्थान ने प्राप्त किया है और इसमें आप पढ़ रहे हैं। और आते समय मन में संकोच रहा होगा, लगता होगा कि हम जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस कॉलेज में कैसे प्राध्यापक होंगे, कैसे अन्य विद्यार्थी होंगे, कैसा वहाँ का वातावरण होगा। मैं समझ सकता हूँ ये जिज्ञासाएं, ये संकोच, ऐसा सबके मन में रहता है। पर आपको शीघ्र ये अनुभव आएगा, हिचकते हुए मिले थे कल जिन लोगों से, हिचकते हुए मिले थे कल जिन लोगों से, क्या पता वही जिंदगी के मायने बन जाएंगे। जिंदगी में कुछ याद रहे ना रहे, जिंदगी में कुछ याद रहे ना रहे, ये लोग बहुत याद आएंगे, ये लोग बहुत याद आएंगे। जो मंच पर हैं वो, और जो अग्रिम पंक्ति में आपकी फैकल्टी के लोग हैं वो। आप अभी सुन रहे थे रमा जी को, उन्होंने आज़ाद भारत के अंदर और स्वर्णिम काल की बात कही है। इस दृष्टि से भी आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके कंधों पर भविष्य का भारत वो गढ़ा जाने वाला है। भारत बदल रहा है, बहुत सी बातों में बदल गया है और आने वाले 25 वर्षों में और बदल जाएगा। आपको अभी लगने लगा होगा भारत विश्व की अग्रिम पंक्ति में आज आकर खड़ा हो गया है। और उस अग्रिम में भी अग्रिम कैसे हो जाएगा, कब हो जाएगा, कुछ आपको अभी से संकेत मिलने लगे होंगे। आप अपने आप पर गर्व कर सकते हैं कि मैं ऐसे देश का रहने वाला हूँ। निश्चित ही प्रधानमंत्री जी अपनी पूरी शक्ति लगा करके, पूरी ऊर्जा के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके अंदर आज का यह जो कार्यक्रम है, कुछ बातें उनके जीवन से भी सीखने की है। हमारे कॉलेज का लोगों के नीचे लिखा है, राष्ट्र प्रथम, देश पहले। हम पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन सब कुछ करते हुए कंट्री फर्स्ट, माई सेल्फ लास्ट। यह भाव जब मन में रहेगा तभी आपका नाम कहीं ना कहीं भविष्य में लोग याद करेंगे। जाना सभी को है, कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आता है, लेकिन जो देश के लिए, समाज के लिए,
परमार्थ के लिए कुछ करके जाएगा, उन्हीं को लोग याद रखते हैं। अभी इन कवियों से आप कुछ अच्छी कविताएं सुनेंगे। प्रताप फौजदार जी, जो टीवी के अंदर आप जिनको देखते हैं, सुनते हैं, बड़े बड़े विशाल मंचों पर और विदेशों में सुनते हैं, आज आपके बीच में हैं, बहुत सहजता से हैं। और वो जहाँ कहीं भी जाते हैं, विदेशों में भी और यहाँ पर भी, जिन लोगों ने देश के लिए काम किया, भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में और ऐसे अनेक जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया। कई आज़ाद मिटे तब हम आज़ाद हुए, ऐसा उनके संबोधनों में हम लोग सुनते हैं। आप जो देश बदल रहा है उसके साथ आप भी कदम मिला करके चलिए। आपको लगेगा मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। हमारे बीच में जो कुछ बालिकाएं भी हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां याद आती हैं, और बच्चों के लिए भी। उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, तुझसे ज़्यादा तेरा नाम बड़ा हो। बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा, हमारे दुर्ग के कवि हैं मयंक शर्मा। बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा, बेटियां नींद छोड़ रजाई खोजती रही, बेटे खोजते रहे कागज वसीयतों का, बेटे खोजते रहे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। अच्छे संस्कार अपने जीवन में हम ग्रहण करने की ओर बढ़े। केवल किताबी ज्ञान आवश्यक है, हमारा पैकेज आवश्यक है, पर आज भारत के वैज्ञानिक दुनिया भर में छाए हैं और आज भारत का स्थान विज्ञान में भी बहुत आगे आ गया है। लोग वहाँ से यहाँ भी आने के इच्छुक हैं। तो आप अपने देश में ही, जैसा अभी कहा, हम नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने। आप अपनी योग्यता इस स्तर पर लाइए तो आपको और अच्छा लगेगा। बहुत अप्रिय सी बात है, लेकिन प्रतिभाएं पढ़ लिख कर जाना चाहें विदेश, प्रतिभाएं पढ़ लिख कर जाना चाहें विदेश, भारत माता पूछ रही है पैकेज बढ़ाया देश। हम अपने देश के लिए काम करें, पैकेज अच्छे से अच्छा लें, लेकिन अपने देश के लिए काम करेंगे तो आपको भी गर्व होगा कि मेरी प्रतिभा, मेरा ज्ञान, सब कुछ इस देश के लिए लगा है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह है जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मेरे परिचय के बारे में जो कुछ बताया गया होगा, लेकिन मैं अपना परिचय इस रूप में दिया करता हूँ कि मेरी कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, LIC नहीं, मेडिक्लेम नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, और शरीर, मैं एक मेडिकल कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी हूँ जहाँ 100 MBBS बच्चों का इंटेक हर साल का है, MD है, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और कई कॉलेज हैं। कि मैंने अपना शरीर भी उस मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दिया। उसके बाद मेरे पास अपना कुछ नहीं, यदि कुछ है तो ये आप सब हैं मेरे पास। आपने इस संस्थान में प्रवेश लिया है और इस परिवार के सदस्य हो गए हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपका कोई व्यक्तिगत सुख दुख का विषय हो, आपको लगे कि ये मुझे अपने किसी मित्र से शेयर करना है तो उससे करिए, नहीं तो अपने फैकल्टी के लोगों से करिए, मेरे से करिए। मेरा नंबर फैकल्टी के लोगों से आप ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, यहाँ पारिवारिक माहौल के अंदर सबको हम मिलते हैं, बात करते हैं।
कहीं किसी को फीस की समस्या आती है, कॉलेज अपनी तरफ से कई करोड़ की चैरिटी करता है, कई करोड़ की चैरिटी करता है। ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है। आप ऐसे संस्थान में हैं, आपसे जो कुछ मिलता है फीस के रूप में भी, वो देश के काम में ही लगता रहता है। कोरोना में भी यहाँ से 50 लाख रुपया प्रधानमंत्री कोष में दिया गया, और भी कितने ही प्रसंग, केरल के अंदर बाढ़ आई तो वहाँ दिया। तो हमारा तो देने का स्वभाव है, जब हम देश और समाज के लिए देते हैं तो अपने बच्चों को क्यों नहीं देंगे। आप निसंकोच कभी भी अपने मन की बात, सुख दुख की बात, पढ़ाई की बात, जब भी आपको लगे निश्चिंत होकर के बात कीजिए। मैं बातचीत के अंदर और कुछ भी जोड़ सकता हूँ, पर आज कवि लोग आपके बीच में हैं। अनिल अग्रवंशी जी देश के बहुत बड़े हास्य कवि हैं, टीवी के पर्दे पर आप जिनको देखते सुनते हैं। यशपाल शर्मा जी हैं, तो उनको भी आप सुनना चाहेंगे। मैं अधिक समय न लेते हुए 2 पंक्तियां कहीं ध्यान में अच्छी लगती हैं। जिंदगी के रंगमंच पर इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना। रजनीश जी हमारे संस्थान के सेक्रेटरी हैं। जिंदगी के रंगमंच पर इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें, लोग याद करते रहें। और हिंदी की बात आप कर रहे हैं, जब तक हम अपने खुद के व्यवहार में हिंदी नहीं लाएंगे, सब लोग भूल रहे हैं, लेकिन अपने से शुरू कीजिए, हस्ताक्षर से शुरू कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी वो हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, उनका व्यक्तित्व इन हस्ताक्षरों से नहीं, लेकिन अपनी चीज़ों पर गर्व करने से होता है। अब तो चिट्ठी लिखने का ज़माना नहीं रहा, लेकिन पहले चिट्ठी लिखते थे तो उसके बाद पता अंग्रेजी में लिख देते। तो हम जब तक खुद मातृभाषा पर, हिंदी पर गर्व नहीं करेंगे, आपस की बातचीत में भी हम जब अंग्रेजी बोल करके सामने वाले को प्रभावित करना चाहते हैं कि अंग्रेजी आती है, तो बहुत अजीब सा लगता है कि हम किसको खुश करना चाह रहे हैं। अपने मन की भावनाएं जो अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो दूसरे की भाषा में नहीं कर सकते। और देश अब अमृत काल से स्वर्ण काल की ओर जा रहा है। आप उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। महाराजा अग्रसेन संस्थान की अनेक शुभकामनाएं आपके भावी जीवन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। An event of Advai 4.0 jointly organized by Manthan, the Literary and Debating Society and Center for Human Values and Skill Enhancement in association with Shri Sahitya Sargam. To know more about the program organized to celebrate Hindi Divas, I would like to call upon Ishita Agarwal. धन्यवाद। मंथन साहित्य एवं वाद विवाद में रुचि रखने वाले लोगों का एक समूह है जो साहित्य से संबंधित विषय पढ़ना एवं लिखना पसंद करते हैं। इसके साथ ही यह हमारे अध्ययन को बेहतर बनाता है और साहित्य प्रशंसियों एवं कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हमारी मातृभाषा हिंदी को सम्मान देने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह उत्सव अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि यह हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत और भाषाई विविधता को बढ़ावा देता है। यह हिंदी की सुंदरता का जश्न मनाने और हमारी समृद्ध भाषाओं में इसके योगदान को पहचानने का दिन है। अद्वै एक वार्षिक साहित्यिक कार्यक्रम है जो हिंदी प्रशंसकों की कला प्रदर्शन का एक माध्यम है। इस बार अद्वै के चौथे अध्याय के अंतर्गत 3 प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। काव्यधारा अंतर महाविद्यालय कविता प्रतियोगिता, अभिव्यक्ति अंतर महाविद्यालय ओपन माइक प्रतियोगिता एवं तर्क वितर्क अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता।
Thank you, Ishita. Shri Yashpal Sharma, former Joint Director, Official Language, Department of Consumer Affairs, Government of India, cleared Union Public Services Examination and got appointed as Assistant Director in Government of India. Sir has published books on ethics and another book titled Beti Bachao, Beti Padhao. We request you, sir, to address the gathering. जिनकी मार्फत हम शिक्षित होते हैं और आप सभी शिक्षार्थी। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। देवनागरी लिपि में लिखने का कार्य किया गया। हिंदी बहुत सबल है, सरल है, सुबोध है और सुगमता से बोली जाने वाली भाषा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ करने का मैंने लगभग पहला अपना एमए जो है वो इकोनॉमिक्स में किया था। हमारे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बैठे हैं वहाँ पर। दूसरा हिस्ट्री में किया था, तीसरा हिंदी में किया था, चौथा पब्लिक एडमिन में किया था, पांचवा सोशियोलॉजी में किया था, उसके बाद एलएलबी की, उसके बाद एलएलएम किया, उसके बाद पीएचडी किया, फिर हिंदी में किताबें लिखी, फिर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के खूब सारे कोर्स किए। मैं ये नहीं बता रहा कि मैं कुछ बखान कर रहा हूँ, मैं तो अभी भी अशिक्षित हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अशिक्षित हूँ। केवल आप लोगों के लिए ये कह रहा हूँ कि अपनी शिक्षा को कभी मत छोड़िएगा। शिक्षा वो कुंजी है जो आधुनिकीकरण के मार्ग को प्रशस्त करती है। Education is a key which unlocks the door to modernization. हम लोग किन्हीं भाषाओं में पढ़े। मैंने थ्रू आउट अंग्रेजी में पढ़ा, लेकिन मैंने हिंदी का प्रेम, हिंदी का साथ कभी नहीं छोड़ा। हिंदी में मेरी 4 पुस्तकें रही। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ कि आपके ग्रंथों की बात हो रही थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मंजिल मंजिल करते देखा, मंजिल की कोई शय नहीं। हमने सबको चलते देखा, पहुंचा तो कोई है नहीं। उसका एकमात्र कारण यह है कि आपके जितने भी साहित्यिक आध्यात्मिक जो किताबें हैं, आप रामचरितमानस की बात कर रहे थे, आप गीता की बात कर रहे थे, गीता जी में भी बहुत सारी बातें साइंस से जुड़ी हुई हैं। मुझे याद है कि मैं एलएलबी का पेपर दे रहा था, उसमें आया था ड्यूटीज ऑफ द एम्बेसडर, यानी राजदूत के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए। मेरे पास आंसर नहीं था। मैंने रामचरितमानस खोजी और उसमें एक पंक्ति मुझे याद आई सुंदरकांड में से, नीति विरोध न मारहि दूता, आन दंड कछु करिए गुसाई। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन, द पॉलिसी सेज दैट एम्बेसडर शुड नॉट बी किल्ड, नीति विरोध न मारहि दूता। ये पंक्तियां हमें मिली वहां से। ऐसे ही जितने भी हमारे आर्बिट्रेशन है, आजकल मैं स्टेट कंज्यूमर कमीशन जो है उसमें मीडिएशन इंचार्ज हूँ दिल्ली के, तो जितने भी आर्बिट्रेशंस होते हैं हमारी, जितनी भी ये इस प्रकार की बातें होती हैं, उसमें गीता जी काम आती हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। आप जो है, यू ब्रिंग योर आर्बिट्रेशन इन माय कोर्ट, आई विल मेक द पांडवास बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग कौरव वर्स ऑफ, यानी विन विन सिचुएशन, दोनों तरफ जीत की सिचुएशन। आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, आप लोग यहाँ हैं। अब देखिए, अभी अभी बात कही प्रतिभा पलायन के, आदरणीय उपाध्यक्ष कह रहे थे प्रतिभा पलायन यानी ब्रेन ड्रेन, कि यहाँ से पढ़ के वहाँ के पैकेज को मत देखना, देश को देखना। आपने देखा कोई अमरीकी यहाँ काम करने आए हो, अपने देश से पढ़ के 2, 4, 5 आ गए होंगे। हम लोग जो है प्रतिभा पलायन करते हैं, ये एक गलत सिद्धांत है। मैं मॉरिशस में था, 2018 की बात बता रहा हूँ आपको। वह हिंदी सम्मेलन था बकायदा, और वहाँ जितने भी लोग आए वो पूरे विश्व के लोग थे, जिसमें अमेरिका से भी थे और जगहों से भी थे, और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं उन सब के नुमाइंदे वहाँ थे, और सारे बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे। आखिर में केवल एक उदाहरण दूंगा, हिंदी हमारे घरों की भाषा है। अंग्रेज़ी हम तब बोलते हैं
जब कुछ सीक्रेट बात करनी हो, जैसे बहुत सर्दी है, अपनी मेड को चाय देनी है, तो हस्बैंड वाइफ से कहता है मे बी गिव हर ए कप ऑफ टी, तो वाइफ कई बार खुंदक मारती वाई, तब चुप हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं कैलाश मानसरोवर पे था 2002 में, मुझे चाइनीज़ बहुत अच्छी आती है, मैं चाइनीज़ बोल सकता हूँ, तो मैंने चाइनीज़ में उससे बात की जो वहाँ बैठा था, और आखिर में मैंने उससे कहा शिए शिए का मतलब होता है थैंक यू, और उसने जानते हैं मुझे क्या कहा, जो मुझे बहुत विचित्र लगा। उस शब्द के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करूंगा, समय बहुत हो चुका है। उसने केवल मुझसे कहा धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, sir, for highlighting the importance of education with such beautiful words. Next, we have Mr. Anil Agravanshi, International Hasya Vyangyan Kavi. Mr. Anil Agravanshi is a well-known personality as a versatile poet with varied qualities, that is singer, music composer, lyricist, and an instrumentalist. He is one of the most viewed poet in Lapete Mein Netaji, India's #1 show on News 18 India. Sir has performed in highest number of episodes of Wah Wah Kya Baat Hai on Sub TV. Sir has performed over 1,000 shows in India and abroad, has authored a book titled Hasi Rok Ke Dikhao, and has various prestigious awards to his credit. He has judged several poetry competitions, debate competitions, and music concerts held at national level. Given performances in the presence of 3 former presidents of India, Shri Venkataraman, Gyani Zail Singh, and Shri Shankar Dayal Sharma. His verses are not just words, they are tapestry of emotions and cultural richness. Please join me in welcoming Shri Anil Agravanshi as he enchants us with his poetic expression. थोड़ा ही बढ़ाओ इसको। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, और आप तमाम स्टूडेंट्स को जय श्री राम। 7-8 लोगों ने अभी भी नहीं बोला, एक बार जोरदार बोलो जय श्री राम। मेरा मन था बहुत ज़्यादा आपके सामने ज्ञान की बातें रखूं, कुछ आपको सिखाऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा ज्ञान भी दुखी करता आदमी को, इसलिए ज्ञान की कोई बात नहीं करूँगा। हास्य कवि हूँ, बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी हैं, बस मैं छोटी छोटी 2 बातें करके, और टोटल मुझे 7 मिनट का समय मिला है, मैं उसी में अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबसे पहले तो मंच पे आसीन आदरणीय जगदीश मित्तल जी, जिन्होंने अपने बारे में बताया, उससे ज़्यादा एक स्पेशल बात और ये है कि राष्ट्रीय कवि संगम एक कवियों की संस्था है, पूरे देश के कवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस बच्चे में टैलेंट होगा वो भी उनसे मिलकर अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकता है। मैं स्वयं उनकी संस्था से निकला हुआ एक स्टूडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां जगदीश मित्तल जी के लिए बजाएं। आदरणीय लोहिया जी, जैसा मुझे पता कि ना केवल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, इतना डोनेट उनमें उनका रहता है, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। ये इंस्टीट्यूट क्यों आगे है? केवल इसलिए नहीं कि यहाँ शिक्षा दी जाती है। मैं आदरणीय नंदकिशोर जी आज आए नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में भी मैं उनका फैन इसलिए हूँ कि दोस्तों, ना केवल शिक्षा की बात मिलती है, यहाँ संस्कारों और देश की बात भी सिखाई जाती है। वैसे A++ ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी को, कुछ तो वजह होगी, तभी कैसा कुछ होता है। एक बार इंस्टीट्यूट के लिए आप तालियां बजाएं कि A+। आदरणीय प्रताप फौजदार जी, मेरे बड़े भाई, लाफ्टर चैंपियन, और आपने देखा होगा जिस टाइम उन्होंने लाफ्टर चैंपियन का अवार्ड जीता राजू श्रीवास्तव जी के साथ, आज हमारे जज के रूप में हमारी इस प्रतियोगिता में शामिल हैं। यशपाल जी, जो डायरेक्टर रहे एक सरकारी विभाग में और आज हमारी प्रतियोगिता के जज हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और यहाँ रजनी मैम जो डायरेक्टर हैं और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ गतिविधियों से लगातार इन्वॉल्व रहती हैं, ये इंस्टीट्यूट के लिए बहुत अच्छी बात है। और सर रजनीश सर का तो मैं क्या उनके बारे में कहूँ, तमाम विधाओं से जुड़े रहते हैं। उनको ये लगता है कि किस प्रकार से हमारे इस इंस्टीट्यूट की तरक्की हो, और यही कारण है दोस्तों कि आप ये यकीन मानना कि इस इंस्टीट्यूट में अगर हमारा दाखिला होता है तो हम सौभाग्यशाली है। मैं ये बता रहे हैं कि आप यहाँ हंसराज में कॉलेज से मैडम आई, ये आपका सौभाग्य है। मैं जब था, मैं कोई टेंशन की बात नहीं करूँगा। अभी बताया कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। नहीं, क्यों करो सुसाइड?
ये ही थोड़ी ना हमारे किस लिए सुसाइड करना है। हमारे आज बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, हमारे टाइम में टीचर करा करते थे। मैं कभी नंबर ही नहीं लाया। बोले तू नंबर लिया 33% नहीं, मैं जहर खा के मर जाऊंगा। टीचर बोला मैं तू कल का मरता आज मर जा, मैं नहीं लाऊंगा 33 से ऊपर। तालियां एक बार जरा जोरदार बजाओ। हाँ, बहुत देर से जरा मुझे चल रहा है मस्ती इतनी देर। हाँ, ये कार्यक्रम लेकिन सबने इतना बढ़िया बताया, बहुत अच्छा बोला, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आए। अभी बताया कि हमारे देश की लड़कियां आगे तरक्की कर रही हैं। हर भाषा का अपना रोल है, भाषा कोई खराब नहीं है, सब भाषाओं का। और उत्तर प्रदेश अपना, हरियाणा अपना है। अभी 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी, एक उत्तर प्रदेश की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। एक मनचला घूरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा नीचे गिर गया। मनचला था, घूर रहा था लड़कियों को, पत्थर पे पांव लगा नीचे गिर गया। तो तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना। पहले उत्तर प्रदेश वाली, जरा अदब का शहर है ना, कैसे बोली उससे, ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। मारा हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। बजाओ जरा मिलके एक ताली, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके बुलाना। बच्चे हैं अलग अलग विभाग में हैं। अभी एक बच्चा मेरे को मिला, बोला तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। वो मेंस में पढ़ता होगा, दूसरे से बोला लड़की से, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। बोली क्यों? बोला मेरी अपनी गली में सेटिंग हो गई। कुछ नहीं पता बच्चों का, कोई क्या बोल दे। तो बच्चों टेंशन में नहीं पढ़ना, मस्ती में पढ़ना है। टेंशन किस लिए रखे हम जीवन में? अभी जगदीश मित्तल जी ने बताया पैकेज बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो बात उन्होंने सीरियस होकर बताई, बस मैं वो हंसी में बता रहा हूं आपको। और हंसी से अगर बताया जाएगा, जीवन में दिक्कत जब पड़ती है, जब हम हंसी की बातों को तो गंभीरता से ले लेते हैं और गंभीर बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। साहब कभी ये नहीं होना चाहिए, हमें उसका भाव समझना चाहिए। और भाव यही है कि हम जो भी बच्चे हैं, आप, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम लोग जिस टाइम पढ़ते थे, हम लोग जब स्कूल आए, हमारे ऊपर बहुत टेंशन थी कि ये है, ये करना है, खाने की, पीने की, पैसों की, एडमिशन्स की। लेकिन आज हमारा देश तरक्की कर रहा है। आप सब लोग समर्थ परिवार से आए हैं, लेकिन जीवन जीने का तरीका ये है, कभी भी बेटा, कभी भी टेंशन में जीवन मत काटना। पढ़ाई में कितने भी नंबर आए, कैसे भी हो, ज्यादा पढ़ लिख जाओगे क्या बन जाओगे? ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर बन जाओगे, यहाँ कोई फायदा नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा मैडम, तो कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख के कुछ नहीं हो जाता। अब मैं 6ठी में फेल हो गया, अब मैं यहाँ मुख्य अतिथि बन के आया हूँ, बताओ क्या करेगा डायरेक्टर? आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी, यहाँ बच्चों को मस्ती लेने दो, ये मस्ती ऐसे मिलेगी, आवाज बढ़ाइए जरा। ये जीवन है, जीवन में मस्ती काटनी चाहिए। मस्ती क्यों नहीं ले हम? ये बच्चे छोटे छोटे, हर आदमी टेंशन में है। एक बच्चा था, उसका रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने कहा अभी रिजल्ट आने वाला, फेल हो गया ना, मेरे को अपना बाप मत कह दियो। वो तो चाहता था नहीं कहना पड़े, बोला फेल हो गया अपना बाप मत कह दियो। अगले दिन रिजल्ट आ गया, पिताजी बोले रिजल्ट आया था, क्या हुआ? कह रहा छोड़ यार, राम प्रसाद क्या करेगा पूछ। इसका मतलब ये नहीं नंबर कम लाएंगे, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज सब कुछ बनना है जीवन में, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है दोस्तों, जीवन में बहुत सारे पहलू हैं। टेंशन लेकर कभी नहीं जीना, टेंशन में पड़ना ही नहीं है। हर आदमी टेंशन में बैठा, दुनिया दुखी है टेंशन में। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन देखो किस किस बात की पाल रखी है। अरे मैं टेंशन में क्यों बैठा भाई? बोला एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। तो मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो टेंशन, किस किस की दूर करोगे? कोई टेंशन नहीं रखनी है साहब हमारे को। टेंशन महिलाएं दे देती है। मैं तो कभी सम्मेलन में बैठा, एक महिला गुस्से में घूर रही मेरे को 15 मिनट से। मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। किस किस की टेंशन दूर करोगे? लेकिन फैकल्टी में देख रहा हूँ यहाँ बैठी हैं, सब जितनी भी बैठी हैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ। सबने छोटी छोटी बिंदियां लगा रखी हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप सीरियल देख लो, जितनी बड़ी बिंदी उतनी खतरनाक लुगाई। कभी भी देख लेना भाई साहब, ये मोटी बिंदी टांग देंगे, उसका समझ जाना ये कुछ करेगी जिंदगी में। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, एक कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूँ। पहले एक नुक्ता जरूर पढ़ देना चाहता हूँ कि रात का ये अंधेरा है ढलता यहाँ, चांद पर गया हमारा यान, तब कहना चाहता हूं कि रात का ये अंधेरा है ढलता यहाँ, उन्नति का दिया अब तो जलता यहाँ। दो इंजन की सरकार धरती पे है, 4 इंजन का रॉकेट चलता वहाँ, 4 इंजन का रॉकेट चलता। मोदी जी ने जो काम किया वो अद्भुत काम किया देश के लिए। और दोस्तों
अंतिम 4 पंक्तियां कहकर अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि जजमेंट के लिए हमको समय भी है। फिर किसी दिन आएंगे, बहुत हंसाएंगे आपको, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। मैं फैकल्टी का धन्यवाद करता हूं जो आज हमें जज के रूप में आमंत्रित किया और इतने सुंदर कार्यक्रम में इन बच्चों से मिलने का अवसर मिला। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप बहुत तरक्की करें। लेकिन जीवन में 2-3 बातें छोटी छोटी यही जरूर कहना चाहता हूं। दोस्तों, कभी माँ बाप को मत भूलना। यहाँ पर पढ़ाई की बात हम बहुत करते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट जहाँ पर देश की और संस्कारों की बात होती है, तो अभी संस्कारों को कभी मत भूलना, अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। कितना भी बड़ा पैकेज बन जाए, और पैकेज छोटा हो या बड़ा हो, मन की खुशी सबसे बड़ी होती है। बन जाओ आप मोदी, बन जाओ तेंदुलकर, बन जाओ अंबानी, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। मैं बिजनेस क्लास परिवार से हूं, आज प्रभु की कृपा से इंटरनेशनल पोएट भी हूं, लेकिन जीवन में यही देखा है, बहुत ज्यादा उपलब्धि करने में खुशियां नहीं मिलती कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। जीवन में खुश रहना। और 4 पंक्ति अंतिम कर अपना स्थान लेता हूं। साहब, ये बच्चियां जिनको हम गर्भ में मार देते हैं, संस्कारों का मंच आदरणीय रजनीश जी बैठे हैं, रजनी मैम बैठी है, रजनी जी को समर्पित करता हूं कि बच्चियों को गर्भ में मत मारो। बहन बेटियों का, नारियों का सम्मान करना भी हम सीखे। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से धन्यवाद, नमस्कार, जय। Thank you, sir, for putting a smile on everybody's faces. Next, we have Shri Pratap Fauzdar, a champion in the Great Indian Laughter Challenge 2 on Channel Star 1. Sir's TV shows Laughter Sarpanchan recently aired India's Laughter Champion on Sony TV Comedy Circus. Season 1 on Sony TV, Fauzdar Hoshiar Show on ZTV, Gangs of Hansipur on ZTV have been appreciated by one and all. Sir has also performed in films Dulha Mil Gaya with Shah Rukh Khan and did lead role in Security Tight Hai, a Punjabi film. At present, Sir has performed in Lapete Mein Netaji, India's #1 show in News 18 India. He has authored books titled Pratishodh, Sikh Yodha Hari Singh Nalwa, Shahid Virwar Gokul Singh. He has done near about 3,600 shows all over the world, including 350 shows in 62 countries covering 6 continents. We welcome you, sir, and request you to address the gathering. मैडम, ये किसने लिखवाया आपको इतना? ये तो मुझे भी पता नहीं मेरे बारे में। भाई थोड़ा सा बढ़ा दे इसकी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम। आयुष, हमें बुला के तू मोबाइल में लग गया, तेरी वजह से ही आया हूँ मैं। जरा देख, वैसे तो मुझे पता है, वो कह रहा था अभी मैंने अपनी गली में ही सेटिंग कर ली, बता रहा था ना। तू क्या खाक बता रहा था, ये बेचारे ठगे जा रहे हैं, क्या सेटिंग करेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। ठगे जा रहे हैं बेचारे। अबे आजकल के लड़के भी है ना, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया, फिर गलियां में गाते मेरा मन डोले मेरा तन। 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी नहीं ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए जाना जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। चलिए थोड़ी देर में मस्ती कराऊंगा आपको। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नाम मुझे याद नहीं है कईयों, बस एक ही नाम मुझे जरूर याद रहता है, आदरणीय जगदीश मित्तल जी का, क्योंकि इस आफत को दिल्ली में ये ही लाए, मुझे लाने वाले दिल्ली में आदरणीय जगदीश मित्तल जी हैं। मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। अरे छोरे कहाँ जा रहे हैं, छोरे कहाँ जा रहे बेटा? अरे कहीं सही जगह देख करके बैठ जाओ,
तो वहीं कौन सी बात है, वहाँ भी लड़के ही बैठे ही, यहाँ भी ठीक ही था। देख थोड़ी देर हंसना हंसाना अच्छी बात है। इंस्टीट्यूट में आप पढ़े, देखो आपका ज़माना है, एसी रूम हो गए, एसी बस हो गई, अपनी गाड़ियों से लोग छोड़ जाते हैं। हमारे ज़माने में रोहिया जी आप तो पढ़े होंगे, हमारे ज़माने में कहाँ है ऐसा। मैं वो अंदाज से कह रहा हूँ मैं, हाँ तो मेरे ऊपर भले मत लगाना साहब कि पढ़ा लिखा कह दिया मैंने किसी को। नहीं, हमारा ज़माना था पैदल पैदल स्कूल जाया करते थे, तब इतने साधन कहाँ थे। हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया, मुझे तो लेने के लिए मेरे हेड मास्टर साहब 4 हट्टे कट्टे लड़के भेजा करते थे। 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 मेरे हाथ सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। अच्छा, मैं भी हवाई जहाज का आनंद लेकर के जाया करता था। चलो हो गया। लेकिन हम एक बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा में इतना अंतर दोस्तों जरूर पड़ गया है कि हमारे समय में गुरु और शिष्य का रिश्ता होता था, आज स्टूडेंट और टीचर का सा रिश्ता हो गया है। सच्चाई ये है कि आज टीचर स्टूडेंट को थोड़ा सा डांट भी देना तो घर वाले शिकायत लेके आ जाते हैं। दोस्तों, हमारे ज़माने में क्या कुटाइयाँ होती थी, मैं सच कह रहा हूँ। पूछ लो, ये जितने भी सफ़ेद बाल वाले बैठे हैं, ये सब कुटे हुए बैठे हैं उस जमाने के। हमें सही कहा, पता मैं क्या क्या कुटाइयाँ होती थी सर। और हम कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर वाले और ज़्यादा कूटते थे कि तैने कुछ किया होगा ऐसा। तो हमारा एक अपना एक ज़माना था। ये गुरु शिष्य का देश है दोस्तों, हम उसको फिर लाना चाहते हैं। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य अगर एकलव्य से अंगूठा मांग लेते हैं तो वो सहर्ष अंगूठा काट करके उनके चरणों में समर्पित कर देता है। हम चाहते हैं दोनों हाथ खड़े करिए, तालियां बजाइए और उस गुरु और शिष्य की परंपरा को लाने के लिए हम फिर से प्रार्थना करते हैं इस देश में तो वो आए और चले जाए। बढ़िया क्या है, हमारे ज़माने में तो भैया कुटाइयाँ होती थी। हमारे एक मैं अनुभव साझा करता हूँ, आपने अपना अनुभव साझा किया। मैडम, आप समझ रही हैं मैं जो कह रहा हूँ, आप गुरुओं में शामिल हैं ना? हाँ, नहीं ठीक भी है। हमारे एक मास्टर होते थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के, हम उनको कूटक यंत्र बोलते थे। मैडम, आपको एक बात और बता दूं मैं आपको, आपका नाम चाहे कुछ भी रहा हो, पर बच्चे मास्टरों का अलग ही नाम रख लेते हैं। हाँ, वो अपने नाम से ही बुलाते हैं, तो हम उनको कूटक यंत्र बोला करते थे। बड़ी कुटाइयाँ करते थे और उनका कूटने का एक तरीका अलग था। जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था तो पहले उसकी तरफ वो मुस्कुराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, तो कठिन सवाल पूछते थे और नहीं बताता था तो कूटते थे। और ऐसे नहीं कूटते थे, उनका स्टाइल था। हमारा कच्चा स्कूल था, कच्ची बाउंड्री थी, उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था। तो जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटा करते थे। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का पहाड़ा बता। हमारे जमाने में पहाड़ा बोलते थे, आप शायद उसको टेबल बोलते हैं। पहाड़ा जानते हैं ना? बोले चल 17 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं आ रहा, तो चलो नीम के नीचे ले गए और कूटा। मैं घर आ गया कूट के, तो मैंने 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार लिया। मैं क्या अब देखता हूँ कान सिंह भाटी को। पहले 25 तक ही पूछा करते थे, क्यों मास्टर साहब 25 तक ही पूछा करते थे। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं आ रहा, तो चलो नीम के नीचे ले गए और फिर कूटा।
दोस्तों मुझ में बचपन से अकल है। हाँ, एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। भाई आखिर में जाना तो वहीं पे है। क्या है, समय बदल गया है, लेकिन आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है। ये देश का भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। आप शिक्षा यहाँ पा रहे हैं शिक्षा संस्थान में, वेलकम आपका। लेकिन आपका देश भी इंतज़ार कर रहा है कि आइए और इस देश को आगे ले जाइए। ये भार आपके कंधों पे आने वाला है। जहाँ तक सोसाइटी की बात करी, सोसाइटी की बात करी, सोसाइटी की क्या सोसाइटी की बात करी, क्या मरना गिरना यार, क्या मतलब है? मैं हाई स्कूल में 13 बार फेल हुआ। नहीं, वैसे नहीं होने देते थे, सिर्फ संस्थागत तो 5 बार ही होने देते थे। 8 बार तो मैं प्राइवेट हुआ हूँ, लेकिन मैं लगा रहा और मैंने हाई स्कूल कर लिया। मैं बता रहा हूँ आपको, ये कक्षा 1 में पढ़ता था जब, अनिल अग्रवंशी, और जब मैंने हाई स्कूल किया था तो ये BA कर रहा था। ये हकीकत बात है। तो अपने अपने उसकी बात होती है। चलिए, मैं आपका थोड़ी देर अगर टाइम है तो मैं थोड़ा सा मनोरंजन आपको कर लेता हूँ। मैम, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप हंस रही हैं, स्वागत क्या, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि घर में भी हंसी खुशी का ही माहौल रहता होगा। आप नहीं, अच्छा होता है आपका। ये बड़ा मुश्किल है सर, घर में आजकल हंसी। दोस्तों एक बात बताऊं, हंसते हंसते पढ़ना, हंसते हंसते बाहर निकलना, देश की सेवा हंसते हंसते करना। कोई भी बात, एक बात कहना चाहता हूं, रिसीव करना ना मेरी बात को। पूरे जीवन में आपका कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार प्रताप फौजदार जी आप झूठ बोल करके गए थे, लेकिन मेरी बात को आप साथ रखेंगे तो आगे से पीछे तक मुझे तालियों से बताना, आपका कोई काम खराब नहीं होगा। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। अरे अंदर की मस्ती रखो यार, जिसकी अंदर की मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो फिर जबरदस्ती जिंदा है। मस्ती में रहो। नहीं, हकीकत बात बता रहा हूं मैं आपको एक जोक सुनाता हूं बढ़िया। मैं चूंकि सरदार हूं तो आपने देखा होगा कि सरदारों पे ज़्यादा जोक पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों? मैं बताता हूं आपको। दरअसल क्या है, आप मैडम जी और बच्चे भी अब नए ज़माने में पैदा हुए हो, आपके लिए बहुत फैसिलिटी है। हमारे ज़माने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। नहीं, पहले हमारे ज़माने में नहीं दिखाते थे। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है, तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? मैंने देख ली, मेरी बाप पट्टे, वो मेरी रही है, देख तुमने ली। अच्छा, मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न वो। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाए। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन मेरे प्यारे
बच्चे हो, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 62 देशों की यात्रा की। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं, सिख योद्धा हरि सिंह नलवा। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। मैंने बहुत प्रोग्राम किए, पूरा देश घूमा। मैंने बताया ना 62 देश घूमे, पर मैं गारंटी देता हूँ जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, अपनी समाज की है, ऐसी न किसी देश की है, न किसी। तो करते ही सर। तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि जितने भी चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं। मुझे लाफ्टर चैंपियन बताया गया अभी, तो मैं वहीं से आपको एक लास्ट जोक का आइटम, क्योंकि मैं आज जो जज बनने वाला हूँ वो ओपन माइक का ही हूँ। ओपन माइक के लिए यहाँ बैठे हैं क्या बच्चे? कुछ बैठे आप लोग हैं? ठीक है, आप ओपन माइक सुनने आना, बहुत मज़ा आएगा। हाँ, उसमें कुछ भी बोलते हैं। आराम। तो मैं आपको एक बड़ा इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूँ। क्यों सरदार इंटेलिजेंट जोक नहीं सुना सकता? यार इस पे भी आउट हो गया। क्या हुआ, जब मैं लाफ्टर के लिए चला गया बॉम्बे, तो एक दिन सरदारनी ने फ़ोन किया, तू कहाँ है? मैं कहा बॉम्बे। बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा मैं लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा ओए भाई, ऐसे कैसे चला जाएगा? बिना सुने चला जाएगा? चल मैं तेरी क्लास में आऊँगा, और क्लास में मैं तो तेरे घर आऊँगा, सुन के जा। तो क्या है? अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे, पहले इन्हें चुप करा ले। अच्छा, जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना, एक इंटेलिजेंट हो, बहुत बढ़िया, आनंद का, तो और इसी से मैं चैंपियन बना था। तो जो मुझे एक जर्मनी से फ़ोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैंने कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं। कैसे? तो हमारा एक सुरेंद्र है तबले वाला, तबड़ तबड़, आप जानते हो लोग। तो वो कुछ जानते हैं क्या लोग आप उसको? कौन कौन जानता है? वो मर गए, उसकी तो मेरे से भी ज़्यादा टीआरपी है। तो क्या है, वो जर्मन जाके आया था, तो मैंने कहा यार वो जर्मन, कहता कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुआडा की हाल है, मैं कहा जर्मन, कहता पाजी तुआडा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? मैडम जी, मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बैरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया, और मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ला। वो पिज़्ज़ा ले आया। मैं कहा गुरु ये जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा, तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला, सरदार जी आपको और क्या चाहिए? चला, मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का। गुरु इसका असली पंच तो अब है। ओ मैं क्या, फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे? अब ठाके लगाते रहो, तालियां भी बजाओगे एक बार। मैं 4 पंक्तियां पढ़ करके और इसका समापन करता हूँ पाठ का।
दोस्तों, आपको लगे मुझे तालियों से विदा करना, मेरी नई पीढ़ी बैठी हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन भर का जितना भी पुण्य है वो सारा का सारा आपको लगे। देश आपका इंतजार कर रहा है, आप आओ, शिक्षा प्राप्त करके आओ, देश आपका इंतजार कर रहा है। और मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, और अगर आपको लगे कि मैं इस वक्त सही मांग रहा हूँ तो मैं समर्पित करता हूँ मेरे अपने सभी मित्रों को भी, आदरणीय सभी को। हमारे रजनीश सर जी, कोई गड़बड़ है क्या? नहीं है? तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तू कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी, अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। अच्छा सही बता, कोई फोटो वोटो भी ले रहा है कि गोरा फिल्ला से ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। मैं 4 पंक्ति पढ़ के इसका समापन करता हूँ, और आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है इस वक्त, तो पीछे तक मुझे समर्थन देना आप, कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा, यहाँ ग्रुप, अभी तुम बाद में हंसे बेटा, इतनी देर में ही समझोगे तो पास कैसे होगे तुम? वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। समर्थन करना है तो मुझे तालियों से विदा करना। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज रसता है। भाषणों में हम कुछ भी कह देते हैं, क्या कहीं पूरे हो रहे हैं? कुछ भी कह देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इतनी आगे पहुंच गई है कि आपके पास सब कुछ होता है। नए बच्चों को बहकाना बड़ा मुश्किल है आज के समय में। भाषणों में आप कुछ भी कहते रहो, उससे कुछ होना जाना नहीं है। हकीकत को सब जानते हैं बच्चे कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले, भगत सिंह जैसे बेटों को बताना भी तरसता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अभी यहाँ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसके अंदर ओपन माइक और कविताओं और उसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसके अंदर हम तीनों को वहाँ जाना है निर्णायक की भूमिका में। लेकिन दोस्तों, क्योंकि वो मेरे आवेदन निवेदन पर वो लोग आए, तो मैं चाहता हूँ सारा सदन एक बार प्रताप फौजदार जी और यशपाल जी के लिए एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाएं। और आभार करता हूँ इस फैकल्टी का, बैठिए अभी 2 मिनट बच्चों। आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय जगदीश मित्तल जी का, लोहिया जी का, और रजनी मैम और रजनीश सर, जिन्होंने इस कॉलेज को नेक के अंदर ये प्लस दिलवाने में जितनी मेहनत की है, वो सूचनाएं बराबर मुझे मिलती रही हैं। आपका सौभाग्य, आप इस कॉलेज में पढ़ते हो। गरिमा बनाए रखना दोस्तों, इस कॉलेज की भी, आदरणीय नंद किशोर जी की भी, अपने माता पिता की भी। खूब नाम कमाओ, खूब आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। It will take only 2 minutes. सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। मैं सबसे पहले नए सत्र में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं और आप सभी के मंगल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, उम्मीद से बहुत अच्छा रहा। हमारे सभी स्पीकर्स ने हमें बहुत अच्छी शुभकामनाएं दी और हास्य कवियों ने तो समा बांध दिया। मैं उसके लिए आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं महाराजा अग्रसेन परिवार की ओर से
आज की हमारी सम्मानित मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रमा, प्रिंसिपल हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर अपनी सह स्वीकृति हमें इस कार्यक्रम में आने के लिए दी और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद मैं हमारे सम्मानित अतिथियों श्री यशपाल शर्मा जी, श्री प्रताप फौजदार जी और मेरे बड़े भाई श्री अनिल अग्रवंशी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे बच्चों को दिया, उनका उत्साह बढ़ाया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाराजा अग्रसेन परिवार की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे मेट्स परिवार के शक्ति स्तंभ और हमारे प्रेरणा स्रोत और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी का, जो हमारी संस्था के संस्थापक और मुख्य सलाहकार हैं और वो चांसलर महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बद्दी हिमाचल प्रदेश के हैं। किसी कार्यवश वो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन हमारे हर कदम पर, हमारे हर प्रयास में वो हमारे साथ रहे हैं, हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्री रजनीश गुप्ता जी का, हमारे जनरल सेक्रेटरी मेट्स परिवार का, और अन्य सभी ट्रस्टीज़ का, जिन्होंने हर कदम पे हमारा सहयोग दिया, हमें मार्गदर्शित किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। मैं हमारे संरक्षक श्री जगदीश मित्तल जी, जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय कवि संगम के, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर कि आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम अपने आप को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आपके आशीर्वाद वचनों से हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और उनके जीवन में नए सोपान वो लोग चढ़ पाएंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, आपके आशीर्वाद वचनों के लिए। मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं हमारी निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर रजनी मल्होत्रा धिंगड़ा जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में हम अपने छात्रों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे और आगे बढ़े, कॉलेज और आगे बढ़े। मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्री प्रोफेसर डॉक्टर एस के गर्ग जी का, श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी का, डॉक्टर नीलम जैन डायरेक्टर मेट्स का, प्रोफेसर संजीव मारवा जी का, जिन्होंने समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी और हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाया। एक बार फिर से मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। हेलो, डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, बाहर गए हैं। आप लोगों के लिए शुभकामनाएं लेने के लिए, आपको देने के लिए उत्तराखंड में नीम करौली बाबा, आपने नाम सुना होगा, इस संस्थान के लिए वहाँ से आपके लिए शुभकामनाएं लेकर के आने वाले हैं। I request the dignitaries to proceed for high tea. We request the judges of the event to proceed for the competition. The participants of Hindi Divas can proceed towards their venue. The first year students to be seated for important announcements.